So thank God for another opportunity to share God's word. और परमेश्वर का धन्यवाद हो एक और मौके के लिए कि मैं परमेश्वर के वचन को आपके बीच में बांट पाऊं। I want to share on two types of faith God wants to see in the last days. और आज मैं दो प्रकार के विश्वास के बारे में बांटना चाहता हूं जो परमेश्वर चाहता है कि अंतिम दिनों में वो देखे। Because Jesus said before the second coming of the faith, second coming of the Lord, this kind of faith, it's difficult to see uh, in the world. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु के दूसरे आगमन के पहले इस प्रकार का जो विश्वास होगा ये संसार में देखना बहुत ही मुश्किल होगा। We can see in Luke chapter 18, हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय verse 8, the last part. उसका 8वां वचन उसका अंतिम भाग। It's written, however, when the Son of Man comes, will he find the faith on the earth? और वहां लिखा है तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। So it's written here in the margin, it's written the faith. That means the faith which is mentioned here. और इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है क्या वो इस विश्वास को पाएगा, अर्थात जो विश्वास का जिक्र यीशु मसीह इस घटना के बाद कर रहा है उस विश्वास को क्या वो तब पाएगा। So what is this, the faith which he's mentioning here? और वो कौन सा विश्वास है जिसका जिक्र यीशु मसीह यहाँ कर रहा है। Here we can see the parable Jesus said of a judge, a very unrighteous judge. और यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा एक ऐसे न्यायाधीश का जो बहुत ही अधर्मी था। See, Jesus is not like this unrighteous judge. He is extremely merciful, extremely kind, but he is giving a very extreme example. और यीशु मसीह इस अधर्मी न्यायाधीश के समान बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ज्यादा दयावान है, बहुत ज्यादा भला है, पर वो एक चर्म का उदाहरण यहाँ देता है। So there was a widow who was totally helpless, and that is a picture of us. और यहाँ एक विधवा है जो पूर्ण तौर पर असहाय थी और ये हमारा एक चित्र है। And this widow was approaching the judge repeatedly because there was a person who was troubling her, so she was approaching for legal protection. और ये विधवा बार बार उस न्यायाधीश के पास जाते रहती थी क्योंकि कोई व्यक्ति उसे सता रहा था और वो उस न्यायाधीश के तौर पर एक सुरक्षा उससे चाहती थी। So that person who was the opponent who was troubling her is a picture of, we can say, Satan, or it can even be a picture of our flesh or the world. और यहाँ जो व्यक्ति उसे सता रहा है वो एक चित्र हो सकता है शैतान का, वो चित्र हो सकता है हमारे स्वभाव, हमारे देह का, या इस संसार का। And initially that judge was totally unwilling to help her. और शुरुआत में वो जो न्यायाधीश था वो बिल्कुल भी उसकी सहायता करने में कोई चाहत नहीं रखता था। But you can see that attitude of the widow. We can see as it's written in verse 3, chapter 18, verse 3, she kept coming to him. पर आप उस विधवा के रवैये को देख पाते हो, जैसे तीसरे वचन में लूका 18 के 3 में लिखा है कि वो बार बार उसके पास आते ही रही। And because that widow was bothering him like that, he at last said, okay, I will give legal protection to her. क्योंकि वो विधवा बार बार उसे सता रही थी, इसलिए उसने कहा कि चलो मैं इसका न्याय चुकाऊंगा और इसे सुरक्षा दूंगा। And we can see verse 7 is written, shall not God bring about justice for his elect, who cry to him day and night, and will he delay long over them? और यहाँ 7वां वचन कहता है इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, क्या वो उनके विषय में देर करेगा। So what Jesus is telling here is, verse 8, we can see, I tell you, he will bring about justice to them speedily. And then he asks, will he find this kind of a faith on the earth in the last days?
और यीशु मसीह यहाँ 8वें वचन में कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। ये कहने के पश्चात वो कहता है, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो वो क्या वो पृथ्वी पर इस प्रकार के विश्वास को पाएगा। So what is that faith which is mentioned there? The faith that is mentioned is a faith where we come to the Lord repeatedly for justice, uh, for we can say because of our sin, because of our areas where we are falling, we go to God repeatedly. और ये विश्वास का मतलब है कि हम प्रभु के पास बार बार आते हैं न्याय प्राप्त करने के लिए, या हमारे पाप की वजह से, या किसी ऐसे क्षेत्र में जिस क्षेत्र में हम बार बार गिर रहे हैं। See, it's possible that a believer can go to the Lord for certain earthly things, like maybe he wants a job or he wants a, let's say, a house or some other, but maybe a sickness. Yeah, it's quite okay to go to the Lord like that. But the question is, how much are we going to the Lord for our spiritual needs? और ये संभव है कि कोई विश्वासी प्रभु के पास उसके भौतिक, उसके पृथ्वी की आवश्यकताओं के लिए जा सकता है, शायद उसके नौकरी के लिए, शायद उसके घर के लिए, शायद किसी बीमारी से चंगाई के लिए। और ये इसमें कोई गलत बात नहीं, पर कितने बार हम प्रभु के पास अपनी आत्मिक आवश्यकताओं को, आत्मिक जरूरतों को लेकर जाते हैं। For example, I'm defeated by anger, I'm defeated by anxiety, defeated by sexual sin. And am I really going to the Lord repeatedly? As is written, she kept coming to him. Am I going on to the Lord and say, Lord, you have to help me, you have to deliver me? उदाहरण के तौर पर, अगर मैं गुस्से के पाप से हारा हुआ हूं, अगर मैं चिंता के पाप से हारा हुआ हूं, अगर मैं यौन संबंध में गलत विचार के पाप से निरंतर हारा हुआ हूं, तो क्या मैं बार बार, जैसे इस विधवा के विषय में लिखा है कि वो उसके पास आकर कहती थी, क्या मैं प्रभु के पास बार बार जा जाकर कहता हूं क्या? So the question that we have to ask is, this kind of a faith is there in my life now? और प्रश्न हमें जो पूछना है अपने आप से वो ये है, क्या मेरे जीवन में इस प्रकार का विश्वास अब है या नहीं है? See, we can see almost a similar type of thing in Sermon on the Mount. और लगभग ऐसी ही एक बात को हम पहाड़ी उपदेश में भी देखते हैं। See, Jesus said there about, if you read in Matthew chapter 5, 6, and 7, he said about anxiety, he said about judging, he said about love of money, he said about anxiety, he said about sexual sin, he said about anger. और अगर आप पहाड़ी उपदेश में देखो, मत्ती 5, 6, 7 में प्रभु ने कहा न्याय करने के बारे में, प्रभु ने कहा चिंता करने के बारे में, प्रभु ने कहा पैसे के प्रेम के बारे में, गुस्से के बारे में, या यौन संबंध में जो पाप है या गलत विचार है उसके बारे में। He also said about being merciful to others, to have a pure heart, to be poor in spirit. All these things he said in these 3 chapters. उसी के साथ साथ इन 3 अध्यायों में उसने लोगों पर दया करने के विषय में, लोगों के एक अपने आत्मा में दीनता होने के विषय में, या हृदय में शुद्ध होने के विषय में, इन सारी चीजों के विषय में भी उसने कहा। And after that, after telling about all this, he says in Matthew chapter 7, verse 6, और ये सब कहने के अंत में वो मत्ती 7 के 6 वचन में कहता है, said, do not give what is holy to the dogs, and do not throw your pearls before the swine, lest they trample them under their feet and turn and tear you to pieces. और प्रभु कहता है, पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो, और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंद दे और पलटकर तुमको फाड़ डाले। So why did Jesus mention that verse immediately after telling all this? और ये सब कहने के बाद, क्यों तुरंत ये सब कहने के बाद यीशु मसीह इस वचन को कहता है? See, what is the reason why he said that? क्या कारण है कि यीशु ने ये सब कहा? See, that is because if my attitude to these things is like that of a dog or a pig, और यीशु ने इसलिए कहा क्योंकि अगर इन सारे चीजों के प्रति मेरा रवैया एक कुत्ते के समान या एक सूअर के समान हुआ, तो a dog is a animal we read in 2 Peter 2 last verse, which turns back to its vomit.
और एक कुत्ता एक ऐसा जानवर है। हम दूसरा पतरस दूसरे अध्याय के अंतिम वचन में ऐसे पढ़ते हैं कि वो कुत्ता अपनी ही छांट की ओर मुड़ता है। And swine is an animal, or pig is an animal which is swallowing in its own in the mire, in the mud dirt. और एक सुअरनी या सुअर जो होता है वो उसी कीचड़ में लौट कर फिर उस कीचड़ में वो मानो रहता है। So that is a picture of a person who takes sin, all that Jesus mentioned here, lightly. और ये एक ऐसे व्यक्ति का चित्र है जो पाप को या उन सारे चीजों को जिसका जिक्र यीशु ने यहाँ किया उन्हें बड़े हल्के में लेता है उनका। So what did Jesus say about such a person? Do not give these things. That means Heavenly Father is not going to give such a life to such a person. और यीशु कह रहा है कि ऐसी चीजें ऐसे लोगों को मत दो। इसका मतलब स्वर्गीय पिता ऐसा जीवन इस प्रकार के लोगों को नहीं देने वाला। But what should be my attitude? We can see chapter 7, verse 7 onwards. पर मेरा रवैया क्या होना चाहिए? हम पढ़ेंगे मत्ती 7 उसके 7वें वचन से आगे। Written, ask, which means keep on asking, and it shall be given to you. Seek, keep on seeking, you shall find. Knock, keep on knocking, it shall be open to you. ऐसा लिखा है मांगो, इसका मतलब मांगते रहो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो या ढूंढते रहो तो तुम पाओगे। और फिर लिखा है खटखटाओ या खटखटाते रहो तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। See, Jesus does not say you try to attain to such a life. Now we have to remember it's impossible for us to attain to such a life. और यीशु मसीह यहाँ ये नहीं कहता कि तुम्हें कोशिश करनी है इस जीवन के मापदंड तक, खुद कोशिश करके आपको ऊपर आना है, क्योंकि इस जीवन के स्तर तक आना असंभव है। I believe all of us would have tried many, many times, and we might have failed miserably. मैं विश्वास करता हूं कि हम में से प्रत्येक ने कई कई बार कोशिश की होगी और हम सब बहुत ही बुरी तरीके से असफल भी रहे हैं। Say, think of a sin like anxiety or anger. However resolutions we make, however decisions and everything we make, we are not going to overcome these things. और चिंता के विषय में सोचकर देखिए या गुस्से के विषय में सोचकर देखिए, हम चाहे कितने भी निर्णय क्यों ना ले ले, कितने भी बार तय क्यों ना कर ले, हम इस पाप पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। God has to give that to us. परमेश्वर को हमें ये देना। And just think of this amazing, encouraging word. Chapter 7, verse 8. Everyone who keep on asking will receive. Everyone who keep on seeking shall find. Everyone who keeps on knocking, it will be opened. और इस अद्भुत प्रोत्साहन के वचन के बारे में सोचकर देखिए जो 8वें वचन में लिखा है, क्योंकि जो कोई मांगता है या मांगते ही रहता है उसे मिलता है, जो ढूंढते ही रहता है वो पाएगा, वो पाता है, और जो खटखटाते ही रहता है उसके लिए खोला जाएगा। Just like what we saw in Luke chapter 18, the question that I have to ask is, am I going to God like that repeatedly? Lord, you have to help me. I cannot do it. However I try, I cannot make it. बिल्कुल जैसे लूका 18 में वो प्रश्न था, क्या मैं बार बार परमेश्वर के पास जाकर मांग रहा हूं कि प्रभु तुझे मेरे लिए ये करना ही होगा, मैं चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं, मैं ये नहीं कर सकता प्रभु, तुझे मेरे जीवन में इस बात को करना होगा। So Jesus is asking, will he find this kind of people, this kind of faith, where we go to God repeatedly and ask for these things? और यीशु कह रहा है कि क्या हम इस प्रकार के विश्वास को प्राप्त करेंगे? इस प्रकार के लोगों को क्या यीशु देखेगा जो बार बार ऐसे लोग जो बार बार परमेश्वर के पास इन चीजों के लिए जाते हैं। If we see the same chapter, verse 13 and 14, we can see Jesus said, enter by the narrow gate. And then in the same verse, it's also written about a narrow gate and a narrow way, a broad gate and a broad way. इसी अध्याय के 13 और 14 वचन में लिखा है, यीशु कहता है एक सकेत फाटक और सरल मार्ग के बारे में, और उसी के साथ साथ एक सकरा फाटक और बहुत ही सकरे मार्ग के विषय में। See, many people think that narrow way is the way where believers go, broad way is the way in which unbelievers go. और कई लोग ये सोचते हैं कि जो सकरा मार्ग है वहां विश्वासी जाते हैं और चौड़ा मार्ग जो है उसमें अविश्वासी जाते हैं। What we have to remember is, here is written of a gate and after that a way. पर हमें इस बात को याद रखना है कि यहाँ एक फाटक के बारे में लिखा है, उस फाटक के आगे एक मार्ग है। That gate, narrow gate, is a picture of genuine repentance
And narrow way is a picture of what we just now read, where we go this way of asking the Lord repeatedly and seeking for such a life. क्योंकि सकरा फाटक और सकरा मार्ग वो है जहां हम प्रभु को निरंतर इस जीवन के लिए मांगते हैं या उसकी खोज निरंतर प्रभु के पास जाकर करते हैं। Now, what is the broad gate? Broad gate is a gate where repentance is not proper, and broad way is a way where we take sin lightly. और ये सकेत फाटक क्या है या चौड़ा फाटक क्या है? एक ऐसा जीवन जहां हम इन चीजों को गंभीरता से नहीं लेते या पाप को गंभीरता से नहीं लेते। So, all these things we have to examine ourselves and see, where am I really standing? Am I really going to God repeatedly and seeking for such a life? और इन सारी चीजों को हमें अपने आप को जांचना होगा और देखना होगा कि क्या मैं कहाँ खड़ा हूं, क्या मैं वाकई बार बार प्रभु के पास जाकर इन चीजों के लिए उसे खोज रहा हूं क्या? So that is the first step of faith we can see in this the portion what we read in Luke chapter 18. और ये पहला प्रकार का विश्वास है जो हमने देखा लूका रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय में। Now let's look into the second type of faith. अब हम दूसरे प्रकार के विश्वास को देखेंगे। We can see this also is very similar to that one. We can see in chapter 18 verse 1. और ये भी बिल्कुल उसी के जैसा है जैसे हमने लूका में देखा, ये 18 अध्याय के पहले वचन में है। Here is written, now he was telling them a parable to show that at all times they ought to pray and not to lose heart. और लूका उसके 18 अध्याय के पहले वचन में लिखा है कि ये फिर उसने इसके विषय में कि वे नित्य प्रार्थना करें और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा। So Jesus is telling here that we have to pray always at all times. यहाँ यीशु मसीह कह रहा है कि हमें नित्य और हर समय प्रार्थना करनी चाहिए। If we don't do, what will happen is we'll lose heart or get discouraged. अगर हम ये नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम हियाव छोड़ देंगे या हम निराश हो जाएंगे। See, what is the meaning of praying always? I mean, we have got work, we have got so many 101 things to do. I mean, is it possible to pray all the time? और निरंतर प्रार्थना करने का क्या मतलब है? हमें काम है, हमें 101 अलग-अलग चीजें हैं करने के लिए, क्या संभव भी है क्या निरंतर प्रार्थना करना? See, we have to remember prayer is something like breathing. Breathing is something that we do all the time. हमें याद रखना होगा कि प्रार्थना करना ये श्वास लेने के समान है, क्योंकि सांस लेना ये ऐसा कुछ है जो हम निरंतर करते हैं। And it's many times we think of prayer as where we tell the Lord so many things, 101 things we tell the Lord. और कई बार हम सोचते हैं कि प्रार्थना कुछ ऐसा है कि जहां हम कई चीजें प्रभु को बताते हैं, 101 अलग-अलग चीजें हम प्रभु को जाकर कहते हैं। See, we have to remember prayer is like a communication. We are communicating with another person. हमें इस बात को याद रखना है, प्रार्थना करना एक बातचीत के समान है, हम एक दूसरे व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं। Just imagine a guest comes to our house. He is spending half an hour in our house, and imagine the entire 30 minutes I'm only speaking. I mean, that looks quite odd. और सोचकर देखिए, कोई मेहमान मेरे घर में आता है, 30 मिनट के लिए मेरे घर में रहता है और 30 के 30 मिनट भर मैं ही उससे बात करता हूं, ये थोड़ा अजीब लगता है। So what happens is many times we listen to that person and then also we talk in between. और कई बार होता यह है कि कोई मेहमान घर पर आने के बाद पहले हम उस व्यक्ति को सुनते हैं, उसी के साथ-साथ हम बीच में कुछ कहते भी हैं। So prayer is not just a monologue, it should be a dialogue. और इसलिए प्रार्थना करना ये केवल एक तरफा बातचीत नहीं होती, बल्कि दो लोगों के बीच की ये बातचीत है। So what actually Jesus is telling here is be in communion with me all the time. और यहाँ यीशु मसीह वाकई में ये कह रहा है कि निरंतर मेरे साथ एक सहभागिता में या संपर्क में बने रहे। See, we have to remember that the essence of Christianity is an intimate, close contact with the Lord. और हमें इस बात को समझना है कि मसीहत की बुनियाद या मसीहत को मसीहत का मतलब क्या है? प्रभु के साथ एक घनिष्ठ नजदीक संबंध। See, for many people, Christianity is reading Bible, praying, going to church, doing ministry, doing different
things like that, helping others, we can say that is not Christianity at all. और कई लोगों के लिए मसीहत क्या है? बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना और कलीसिया में जाना, अलग अलग चीजें करना, इन्हीं चीजों को वो मसीहत समझ बैठते हैं, पर ये बातें वाकई में मसीहत नहीं है। Yeah, it is very good to read Bible, go to church, pray. All this is good, but that is not the essence or the integral part of Christianity. हाँ, ये बहुत अच्छा है कि हम प्रार्थना करें और कलीसिया में जाए और बाइबल पढ़े, ये सारी चीजें अच्छी हैं, पर ये मसीहत की बिल्कुल मूलभूत बात नहीं है। See, the essence of Christianity is whether I'm living in a close contact, close communion, intimate relationship with the Lord. मसीहत का सार ये है कि क्या मैं प्रभु के साथ एक घनिष्ठ संबंध में, एक निकटता के संबंध में, एक नजदीकी के तरीके से मैं उसके साथ जीवन बिता रहा हूं या नहीं। See, that is the second type of faith. Jesus said, will he find on earth when he returns? ये दूसरे प्रकार का विश्वास है जिसके बारे में यीशु ने कहा कि क्या वो ये दूसरे प्रकार का विश्वास इस पृथ्वी पर पाएगा जब यीशु वापस लौटेगा। See, this relationship with Jesus Christ, the best possible example on earth is a husband-wife relationship. और यीशु के साथ जो ये संबंध है या परमेश्वर के साथ ये संबंध है, इसका सबसे नजदीकी एक उदाहरण अगर हम देख सकते हैं वो है पति पत्नी का रिश्ता। See, just think of a wife who is cooking the food, washing the husband's clothes, and doing different things. But is that the husband-wife relationship? सोच कर देखिए, एक पत्नी अपने पति के लिए खाना बनाती है, वो उसके कपड़े धोती है, वो उसका क्या ये पति पत्नी के रिश्ते का सार है कि ये महत्वपूर्ण भाग है क्या? All these things even a servant can do. क्योंकि ये सारी चीजें तो कोई दास भी कर सकता है। The essence of a husband-wife relationship is that they become one, as Bible says. They become an integral part. They come to know each other and they are devoted to each other. That is the essence of a husband-wife relationship. और पति पत्नी रिश्ते का सार ये है कि जैसे बाइबल बताता है कि वे एक हो जाते हैं, वे एक दूसरे को जानने लगते हैं, एक दूसरे को पहचानने लगते हैं। ये विवाहित जीवन का या पति पत्नी के जीवन का एक सार है। See, I got married almost uh, 30, more than 30 years ago. और At that time, I knew my wife to a small extent. और मेरा विवाह लगभग 30 वर्षों पहले हुआ। उस समय मैं अपने पत्नी को कुछ मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में जानता था। But today, I am much more closer to her. पर आज मैं उसके बहुत ज्यादा निकट हूँ। I love to be with her. She loves to be with me. मुझे उसके साथ रहना बहुत पसंद है, उसे मेरे साथ रहना बहुत पसंद है। See, that is the type of relationship Jesus wants us to have with him. इस प्रकार का संबंध यीशु मसीह चाहता है कि हमारे साथ उसका हो। See, it's true that we have to work, we have to do so many things. But what we have to ask is right from the morning till we go to bed, and even in the night, when, say, for example, we wake up, as we read earlier, is it a life where we continuously go to God and live in a relationship with Him? और क्या हमें अपने जीवन को जांचना होगा सुबह से लेकर रात तक, और रात में भी जब हम बीच बीच में जगते हैं, जैसे हमने पहले भी देखा, क्या हमारा जीवन एक ऐसा जीवन है जहां हम निरंतर उसे खोज रहे हैं और उसके निकटता में उसके साथ एक संबंध में है क्या? See, it's true that, say, when, for example, when we are working, it's not possible to pray. We may be completely concentrated on our work. और ये बिल्कुल सच है कि जब हम काम कर रहे हैं तो प्रार्थना करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कभी कभी हमारा पूरा का पूरा ध्यान शायद हमारे काम में हो सकता है। But whenever we are free, whenever or when we are, just imagine after the work, is my heart going out to the Lord saying, Lord, I just love you. I just want to be with you. No, that kind of an attitude. That is what God wants in our life. पर जब हमें थोड़ा सा काम पे समय मिल जाता है, जब हमारा काम खत्म हो जाता है, क्या हम तुरंत प्रभु के पास हमारा हृदय जाता है क्या? क्या हम प्रभु से कहते हैं क्या प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तेरे पास होना चाहता हूँ? क्या इस प्रकार का संबंध प्रभु के साथ हमारा है क्या? See, what we have to remember is when God made man, what was his greatest longing in his heart? हमें इस बात को याद रखने की जरूरत है, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसके हृदय की सबसे बड़ी लालसा क्या थी? See, then we can understand
what is the meaning of the prayer, always praying, which Jesus meant here. उसके बाद हम समझ सकते हैं उस प्रार्थना का क्या मतलब है, जहां यीशु ने कहा कि नित्य प्रार्थना करना या निरंतर प्रार्थना करना। We can turn to Genesis chapter 1. हम निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय। See, we know that after the first day, second day, third day, fourth day, everywhere Jesus said, it is good. हम देखते हैं पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरे दिन, हर एक सृष्टि के दिन के बाद प्रभु कहता है कि ये अच्छा है। But when the sixth day came, immediately after man is made, we can see in verse 31, chapter 1, verse 31, God saw all that he made, behold, it was very good. We पर can जैसे छठा दिन आया, जैसे मनुष्य को परमेश्वर ने बना दिया, तो छठे वचन में प्रभु कहता है कि पर जब 31 वचन में, माफ कीजिएगा, 31 वचन में, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। So that is the first time that word comes, very good. और पहले बार वो शब्द आता है बहुत ही अच्छा। What is the reason for that very good to be said? Because it's immediately after man is made. और क्या कारण है कि वहां बहुत ही अच्छा लिखा है? उसका कारण ये है कि वो मनुष्य को बनाने के, मनुष्य की उत्पत्ति के तुरंत बाद था। Now, all these chapter divisions came later. When Moses wrote, it was a continuous letter. और ये जो बाइबल को अध्यायों में बांटा गया है, ये सब बाद में आया। जब मूसा ने लिखा तो ये पूरा एक समान, उसने एक साथ वो उत्पत्ति को लिखा था। So, how it became very good, we can see in the continuing verses in chapter 2. और आगे हम देख सकते हैं कैसे वो बहुत अच्छा हो गया, दूसरे अध्याय के पहले कुछ वचनों में हम देख सकते हैं। Thus, the heaven and the earth were completed, and all the hosts in verse 2. And by seventh day, that means immediately after the next 6 days, the seventh day came, God completed his work which he has done, and he rested on the seventh day from all his work which he has made. यो दूसरा अध्याय पहला वचन, यो आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना को बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था सातवें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से सातवें दिन विश्राम किया। So it's written he rested on the seventh day. What is the meaning? Does it mean that he just folded his hand and sat somewhere? और यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने अपने काम से सातवें दिन विश्राम किया। इसका मतलब उसने अपने हाथ लगाकर क्या कहीं बैठकर कहीं विश्राम किया क्या? Actually, rested means he was spending time with man. और विश्राम करने का मतलब है कि वो मनुष्य के साथ अपना समय बिता रहा था। See verse 3. God blessed the seventh day and sanctified it. और तीसरे वचन को देखिए, परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। You know what is the meaning sanctified? The word sanctified means he set that day apart to spend time with man. क्या आप जानते हो पवित्र ठहराने का क्या मतलब है? पवित्र ठहराने का मतलब है प्रभु ने सातवां दिन को अलग ठहराया मनुष्य के साथ समय बिताने के लिए। You can say he sanctified it because that means he set that day apart because he rested from all his work which God has made. That means he was spending, he was fellowshipping with man. He was fulfilling the greatest desire of his heart in creation. और दूसरे शब्दों में हम तीसरे वचन को ऐसे भी पढ़ सकते हैं, परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी और उसे अलग ठहराया। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य के साथ अपने समय को बिताना चाहता था, और इसी वजह से जो उसके सृष्टि को बनाने में जो सबसे बड़ा आनंद था, उसको मनुष्य के साथ संगति करने में था। So I don't know how many days God and man were in close relationship. That is not clear here. मैं नहीं जानता कि कितने दिन तक परमेश्वर और मनुष्य एक नजदीक के संबंध में थे, वो इस अध्याय से साफ नहीं होता। But there was a creature who was extremely unrestful seeing all that. पर ये सब देखकर एक ऐसा सृजा हुआ प्राणी था जो बहुत ज्यादा बेचैन था ये सब देखकर। That was Satan. वो था शैतान। And that's why we can see in verse chapter 3, he is coming and he is making Adam and Eve fall. और इसलिए हम देखते हैं कि तीसरे अध्याय में वो आता है और आदम और हवा को गिराता है। We can see now after man fell, we can see in chapter 3 verse 9, the Lord called to man and said to him, where are you? और तीसरा अध्याय 9वें वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पुकार कर आदम से कहा या मनुष्य से कहा, तू कहाँ है? So after the fall of man, it is not man seeking God, now God is seeking man. और मनुष्य के पतन के बाद
मनुष्य परमेश्वर को नहीं खोज रहा बल्कि परमेश्वर मनुष्य को खोज रहा है। And we can see Adam said, I heard the sound of you in the garden. I was afraid because I was naked and I hid और myself. और हम देखते हैं 10वें वचन में आदम उत्तर देता है, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। And see what God replied. Who told you that you are naked? Have you eaten the tree from which I commanded you not to eat? और देखिए परमेश्वर 11वें वचन में क्या कहता है, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? See, we have to remember what is actually the meaning of these questions. और हमें इस बात को याद रखना है कि इन प्रश्नों का वाकई में अर्थ क्या है। He is asking man, will you acknowledge your sin? Will you admit your sin and say, yes, it's because of my fault that all these things happened? वो मनुष्य से प्रश्न कर रहा है कि क्या तू अपने पाप को मान लेगा क्या? क्या तू इस बात का अंगीकार कर लेगा क्या कि मेरे वजह से ये सारी चीजें हो रही है? See, I want to ask you a question. Do you think God knew that man is going to fall? मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, क्या आपको लगता है परमेश्वर पहले से ही जानता था क्या कि मनुष्य गिरने वाला है? See, think of a person who made a washing machine or an AC. He knew completely how that instrument is going to work. सोच कर देखिए, किसी व्यक्ति ने अगर वॉशिंग मशीन बनाया या एसी बनाया, वो पूर्ण तौर पर जानता है कि वो यंत्र किस प्रकार से काम करेगा। So, in the same way, when God made man, he knew that one day Satan is going to come and that man, Adam and Eve are going to fall also. बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया था, उस वो जानता था कि एक दिन शैतान आएगा और आदम और हवा गिरने वाले हैं। But at least after the fall, if they honestly admit that fault, then God could have restored man. पर अगर उनके पाप के बाद वे ईमानदारी से इस बात को मान लेते थे कि उन्होंने पाप किया है, फिर परमेश्वर उन्हें पुनः स्थापित कर सकता था। We can say these questions are like rhetorical, or we can say he is asking these questions so that man will acknowledge his fault and admit it, and he will say, yes, it's because of my fault that this has happened. That was the response God was expecting from man. और हम कह सकते हैं कि ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न इसलिए नहीं था कि प्रभु उसका उत्तर जानना चाहता था, बल्कि प्रभु ये देख रहा था कि क्या मनुष्य वहां अपने पाप को मान लेगा, उसका अंगीकार करके उसके सामने आएगा क्या। इसलिए प्रभु ने यह प्रश्न उनसे पूछा। But see how what was Adam's reply? The पर woman देखिए, whom you gave me, she gave me this fruit to eat, and then I ate it. पर देखिए आदम का उत्तर क्या था, आदम का जवाब क्या था कि जिस स्त्री को तूने मुझे दिया, उसने मुझे इस फल को दिया और मैंने उसे खाया। So Adam is putting fault on God. You only have given this woman to me, and that is the reason why I fell. और आदम पूरा का पूरा दोष जो है वो परमेश्वर पर लगा रहा है, ये कहते हुए कि तूने मुझे स्त्री को दिया, यही कारण है क्यों मैं गिर गया। Now God is asking woman. We can see in verse 13. Then God asked the woman, "What is this you have done?" And we can say again the the question is meant so that she also can at least admit what God was thinking is, now at least you will admit your fault, and at least you will say that it's because of my fault that this has happened. और 13 वचन में हम देखते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? फिर एक बार हम देखते हैं कि ये प्रश्न प्रभु इसलिए पूछ रहा है, प्रभु सोच रहा है कम से कम स्त्री तो इस बात को मान ले कि उसने क्या किया, उसने क्या पाप किया है। And she also said, you can see verse 13, the serpent deceived me and I ate it. That means it's not my fault. The fault is there in that serpent. और हम देखते हैं फिर एक बार हवा ने भी वही उत्तर दिया कि सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। इसका मतलब प्रभु दोष मेरा नहीं है, दोष उस सर्प का है। Adam said, this is not my fault. Wife's fault. Wife said, this is not my fault. Serpent's fault. आदम ने कहा प्रभु दोष मेरा नहीं, मेरे पत्नी का है। पत्नी ने कहा, हवा ने कहा, प्रभु दोष मेरा नहीं, सर्प का है। That is the reason why God drove both of them out of the garden. यही कारण है क्यों परमेश्वर ने उन दोनों को उस बगीचे से बाहर निकाल दिया। See, I believe that God wanted to restore them the same day, provided they will admit their fault, acknowledge their fault, and turn to God.
मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु उन्हें उसी दिन पुनः स्थापित करना चाहता था, अगर वे अपने पाप को मान लेते, अपने दोष को अंगीकार करके प्रभु की ओर मुड़ते तो। So we can see in this 3 chapters, we can see the longing of God when God made man in order to have fellowship with man. और हम इन 3 अध्यायों में देख सकते हैं परमेश्वर की क्या ही तीव्र लालसा है जब उसने मनुष्य को बनाया, कितनी एक नजदीकी कितनी एक उसकी आतुरता है मनुष्य के साथ संगति करने की। And we can see what is one main reason why we lose fellowship with the Lord is because whenever we blame others, whenever we don't take fault on us, whenever we don't acknowledge our fault honestly, put blame on others, then God cannot have fellowship with us. और जब एक मुख्य कारण क्यों हम प्रभु के साथ संगति हमारी टूट जाती है, जब कभी हम दूसरे पर दोष लगाते हैं, जब कभी हम दूसरों को हमारे परिस्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, उस परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ संगति नहीं कर पाता। Let's turn now to Proverbs chapter 8. हम निकालेंगे नीति वचन उसका 8वां अध्याय। There also we can see something is written about creation. और यहाँ भी सृष्टि के बारे में कुछ लिखा है, हम यहाँ पढ़ते हैं। We can see here in chapter 8, it's written about wisdom. And यहाँ wisdom is a picture of, we can say, Jesus Christ. और नीति वचन 8वें अध्याय में हम बुद्धि का एक चित्र बुद्धि के बारे में पढ़ते हैं, और बुद्धि ये यीशु मसीह का एक चित्र है। We can see chapter 8 verse 30 and 31. हम देखेंगे नीति वचन 8वां अध्याय 30 और 31 वचन। Then I was beside him. That is, he's telling Jesus was beside God as a master workman. We know that it's Jesus who made the entire earth, heaven, everything. और ऐसा लिखा है, तब मैं कारागिर सा उसके पास था, मतलब यीशु मसीह उसके साथ था और प्रभु के साथ था। और यहाँ कारागिर लिखा है क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने इस पृथ्वी और सारी चीजों को सृजा है या बनाया है। And we can see I was daily his delight. That means God's delight was in Jesus Christ. Jesus' delight was in God. और यहाँ लिखा है कि मैं प्रतिदिन उसका प्रसन्नता था, मतलब यीशु मसीह पिता यीशु में प्रसन्न रहता और यीशु पिता में प्रसन्न रहता। We can see there that intense relationship which God and man had. और यहाँ हम एक उस तीव्र संबंध को देखते हैं जो परमेश्वर और मनुष्य का है। And see the next word written, rejoicing always before him. और देखिए अगला वचन लिखा है कि अगली पंक्ति कहती है कि हर समय उसके सामने आनंदित रहना। You know what is written in the margin? Is written playing always before him. सॉरी अंकल, Playing. Oh. That's written in the margin. इंग्लिश के मार्जिन में ऐसा लिखा है कि उसके सामने निरंतर खेलना। Just think, it's a picture of how that relationship was there between the father and the son. और ये एक चित्र है कि पिता और पुत्र के बीच किस प्रकार का ये संबंध था। And then it's written, playing in the world, verse 31, in his earth. और फिर लिखा है 31 वचन, मैं उसके बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न था। And again is written, having my delight in the sons of men. और फिर एक बार लिखा है, मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। Again you can see the delight of God, delight of man was to spend time with man. और फिर एक बार हम देखते हैं परमेश्वर का सुख या आनंद, मनुष्य का सुख या आनंद एक दूसरे के साथ समय बिताने में था। So now let's turn to 1 John chapter 1. अब हम निकालेंगे पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय। We can see, we know that we have heard in the church, Brother Zach telling many times, John was writing when he was above 90 years. और हम कई बार हमने भाई जैक को कलीसिया में ये कहते हुए सुना है कि यूहन्ना ने ये पत्री तब लिखी जब वो 90 वर्ष का था। And all the other apostles have already died. और तब तक बाकी सारे अन्य प्रेरित मर चुके थे। And he was seeing the decline that is coming in Christianity. और वो देख रहा था कि मसीहत में किस प्रकार की एक गिरावट मानो आ रही है। And he was extremely painful about the type of backsliding that has happened in Christianity, and he's writing the most essential things of the Christian life. और उसके हृदय में बहुत ज्यादा दर्द था मसीहत की अवस्था को देखकर, और इसलिए मसीही जीवन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण और मूलभूत बुनियादी बातों को वो यहाँ लिखता है। Let's see how he's starting this letter. 1 John chapter 1 verse 1, what was from the beginning?
और देखिए वो इस पत्र का आरंभ कैसे करता है, पहला यूहन्ना पहला अध्याय पहला वचन, और वो कहता है उस जो आदि से था। So that is before man was made, before earth was there, before heaven was made, before even Satan, angels were created. और इसका मतलब मनुष्य को बनाने से पहले, पृथ्वी को बनाने से पहले, या स्वर्गदूत और शैतान को भी बनाने से पहले What was there at that time? उस समय क्या था? As we saw in Proverbs 8, there was this intense fellowship between Father, Son, and the Holy Spirit. जैसे हमने नीति वचन 8वें अध्याय में देखा, ये तीव्र एक संगति थी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बीच। And then John is writing what we have heard and what we have seen in Jesus. We saw in the life of Jesus that he was all the time in communion with the Father. और फिर यूहन्ना कहता है जिसे हमने सुना, जिसे हमने अपनी आंखों से देखा, अर्थात यीशु के जीवन के बारे में, क्योंकि यीशु के जीवन में उन्होंने देखा कि यीशु निरंतर पिता के संगति में बना रहता था। If you ask this question, what are the things that Jesus valued most when he was on earth? अगर आप ये प्रश्न करोगे तो वो कौन सी चीजें हैं जिसका सबसे ज्यादा मूल्य यीशु ने सबसे ज्यादा मूल्य किया जब वो इस पृथ्वी पर था? We know that just before his death, before when he went to Gethsemane, he was praying, Father, if it possible, let this cup pass from me. But हम if not my will, but thy will be done. हम जानते हैं यीशु के क्रूस पर जाने के कुछ ही समय पहले गेत्सेमनी के बाग में यीशु प्रार्थना करता है कि हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मुझसे हटा ले, पर वरन मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी होने दे प्रभु। We have heard Brother Zach telling he's not mentioning about the cross, that the pains that he has to go undergo in the cross, or the nails will be put in his hand. He would have gladly undertook 1,000 crosses. और हमने भाई जैक से ये कहते हुए सुना है कि वो शारीरिक दुख नहीं था कि उस क्रूस पर कितनी पीड़ा वो सहेगा और कितने कीड़े उसके हाथों में ठोके जाते, नहीं, वो खुशी खुशी 1000 ऐसे क्रूस को सह लेता। But he was telling about just those 3 hours where his fellowship with the Father, which he enjoyed all through eternity, and even when he was on earth, is going to be cut for 3 hours. पर वो केवल उन 3 घंटों के बारे में चिंतित था, क्योंकि उस संगति को जो अनंत काल से यीशु के पिता के साथ थी, और इस पृथ्वी पर भी यीशु के पिता के साथ वो संगति बरकरार थी, पर उन 3 घंटों के लिए वो संगति टूटने वाली थी। Just imagine his sweat was coming like drops of blood, which means the intense pain in having that fellowship cut for 3 hours, that he just could not bear it. और सोचकर देखिए कि उसका पसीना खून के बूंदों के समान टपक रहा था, मतलब कितना तीव्र वो पीड़ा और वो दर्द होगा, क्योंकि उसकी पिता के साथ जो संगति थी वो टूटने वाली थी, उसे वो नहीं सह पा रहा था। That is what John is writing here, verse 3. We have seen and heard and proclaimed to you that you also may have fellowship with us. And he's telling our fellowship is with the Father, with his Son, Jesus Christ. और तीसरे वचन में यूहन्ना कहता है जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। So that greatest longing of God, the reason why he died, the reason why he reconciled us, the reason why our sins are forgiven, the reason why he justified us, the reason why he sent the Holy Spirit. और सबसे बड़ी लालसा पिता परमेश्वर की, क्यों उसने अपने बेटे को भेजा उस क्रूस पर मरने के लिए, क्यों उसने हमारे साथ मेल मिलाप करवाया, क्यों उसने हमें धर्मी ठहराया, क्यों उसने हमें पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेजा। And the reason we can see here, that we may come to that fellowship with the Father and with his Son Jesus Christ. उसका कारण यहाँ लिखा है ताकि हम पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ संगति में या सहभागिता में आ सके। And John is writing here, my dear brothers, my dear sisters, if this is not there, everything in Christian life has already gone. और यूहन्ना यहाँ लिख रहा है कि मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्रिय बहनों, अगर ये नहीं है तो मसीहत में जो भी मसीह जीवन में तुम्हारा है वो सब चला जा चुका है। Just like in a husband-wife relationship, the devotion to each other is not there, the entire marriage has gone. बिल्कुल जैसे एक पति पत्नी के रिश्ते में अगर उनका एक दूसरे के प्रति जो उनकी एक निष्ठा या प्रेम है वही चले गया है, तो फिर उनके विवाह में सब कुछ मानो जा चुका है। That is what
Paul is writing in another place. The Satan has came and took the devotion from Adam and Eve. Just like that, Satan is all the time engaged in somehow taking the devotion to the Father and the Son from our life also. और बिल्कुल जैसे पौलुस एक और जगह कहता है, जैसे शैतान ने आकर अपनी धूर्तता से आदम और हवा को बहकाया, वैसे ही निरंतर शैतान काम करता है कि प्रभु के प्रति जो हमारी भक्ति है, जो हमारा प्रेम या निष्ठा है, उसे वो निकाल दे हमारे जीवन से। See in verse 4, these things we write so that our joy may be made complete. और हम चौथे वचन में पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना पहला अध्याय चौथा वचन, ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। Where will our joy be complete? हमारा आनंद कहाँ पूरा होगा? It is completed. It will be truly completed only when we come to this real relationship with the Lord. हमारा आनंद तब पूरा होगा, वास्तविकता में वो तभी पूरा होगा जब परमेश्वर के साथ हम इस वास्तविक एक संबंध में या इस रिश्ते में आ जाते हैं। Immediately after that he says, verse 5, this is the message we've heard and announced you, God is light, in him there is no darkness at all. उसके बाद तुरंत वो पांचवें वचन में कहता है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। If we say we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not practice the truth. यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। So what he's telling is, if we walk in darkness, means even if one sin comes into our life, that fellowship is gone, and we cannot, only when we repent and turn back to God, that relationship is restored. और अंधकार में चलने का क्या मतलब है कि जब भी हम एक भी पाप करते हैं, एक भी पाप है, तो हमारा संबंध टूट जाता है, हम अंधकार में हैं। केवल जब हम मन फिराकर उससे छोड़ देते हैं, तभी हमारी संगति परमेश्वर के साथ फिर एक बार पुनः स्थापित होती है। See, here we read of walking in darkness. यहाँ हम अंधकार में चलने के विषय में पढ़ते हैं। Walking in darkness means, imagine we have got a bitterness engaged in anybody, unforgiving attitude, or in mobile some file is kept which is not right, or we are imagining some scheming something against somebody, whatever it is. We walk in darkness, it's like a wall between us and God. There is no relationship. और अंधकार में चलने का क्या मतलब है? सोचकर देखिए, किसी के प्रति हमारे मन में कड़वाहट है, या किसी के प्रति क्षमा न करने का रवैया है, या हमारे फोन में कोई ऐसी फाइल है जो सही नहीं है, या हमारे मन में हम निरंतर किसी के बारे में उसे कुछ बुराई करने के विचारों को हम सोच रहे हैं, कोई योजना बना रहे हैं, तब हम अंधकार में चल रहे हैं, जिसका मतलब परमेश्वर और हमारे बीच में एक दीवार है और उसका और हमारा कोई संबंध नहीं है। My dear brothers and sisters, ask yourself, is there anything between you and Jesus Christ? मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने आप से यह सवाल कीजिए कि क्या आपके और यीशु मसीह के बीच कुछ है क्या? Just think of a switch, this light is on, this mobile is working, this laptop is working, fan is working, everything is working, because when we put on a switch, two wires are connected. और ये आपके रूम में देखिए, ये बत्ती जल रही है, आपका लैपटॉप चल रहा है, फैन जल रहा है, ये सब क्यों? क्योंकि जिस समय हम किसी स्विच को, किसी बटन को ऑन करते हैं, तो दो तार होती है जो एक दूसरे से जुड़ जाती है। If these two wires are separate even by 1 millimeter, there won't be any, there will be total darkness. अगर दो तारों के बीच में 1 मिलीमीटर इतना भी अंतर हुआ, तो भी पूर्ण अंधकार होगा, कोई ज्योति नहीं जलेगी। So imagine in our house light has gone. सोचकर देखिए, हमारे घर में लाइट चले जाती है, तो Is it okay if the light comes back after 1 week? क्या हमें ठीक लगेगा क्या एक हफ्ते बाद लाइट आती है? After 3 days, let the light come. That's okay. Is it okay like that? क्या हम ऐसे कहेंगे क्या, चलो 3 दिन बाद लाइट आए तो भी ठीक है, ये हमें चलेगा क्या? Now it's around 8:25. Tomorrow 8:25, the light comes. That's okay. अब 8:25 बज गए हैं, क्या कल शाम को 8:25 पर लाइट बिजली वापस आए, चलेगा क्या? No, we want the light to come back in 2-3 minutes. नहीं, हम चाहते हैं कि लाइट जो है, बिजली जो है 2-3 मिनट में वापस आ जाए। Are we keeping our relationship with the Lord like that? क्या हम प्रभु के साथ अपने संबंध को इस प्रकार से संजोए रखते हैं क्या? Imagine in between you and your wife, something has happened. Maybe a hard word has come, rude word has come, bad attitude has come.
are we restoring it as quick as possible? सोच कर देखिए, आपके और आपके पत्नी के बीच में कोई अलगाव आ गया, शायद कोई बुरा शब्द का इस्तेमाल कर दिया, शायद कठोरता से आपने किसी शब्द का इस्तेमाल कर दिया, कुछ आपने कह दिया। क्या हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने जल्दी हो जाए उस संबंध को हम पुनः स्थापित करें? See, we all know about our eye. Even as small dust enters, we are terribly irritated. We want to that dust to go away as quick as possible. हम सब अपने आंख के बारे में जानते हैं, उसमें धूल का एक तिनका क्यों ना चला जाए, हम इतने अस्वस्थ हो जाते हैं, हम चाहते हैं कि तुरंत वो धूल हमारे आंखों से निकल जाए। And the Lord is asking this question: am I keeping my relationship with the Lord like that? और प्रभु हमसे ये प्रश्न करता है कि क्या प्रभु के साथ जो हमारा संबंध है उसे मैं इस प्रकार से रख रहा हूं क्या? I want to tell you, this is the essence of Christianity. मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीहत का यही सार है। There is a Puritans. You might have heard about Puritans of old times. They had a canon called Westminster Canon or something like that. और ये जो पुराने जमाने में एक प्यूरिटन्स नाम के लोग थे, उनका एक वेस्टमिनिस्टर ऐसा कुछ एक कैनन था। In that, the first law that is written is the first thing that is written is the chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. और उसके सबसे पहले चीज में ये लिखा है कि मनुष्य का मुख्य जो उसका लक्ष्य है वो परमेश्वर को महिमा लाना है और परमेश्वर को हमेशा के लिए उसमें आनंद करना है। Just imagine, just think of that word, glorify God and to enjoy God forever. और सोचकर देखिए, वहां लिखा है कि मनुष्य परमेश्वर को महिमा करना और हमेशा के लिए उसमें आनंद मनाना। I just want to read this verse and close. Psalm 16, last verse. मैं इस वचन को पढ़कर अंत करना चाहता हूँ। भजन संहिता उसका 16वां अध्याय उसका अंतिम या 11वां वचन। Thou shall make me know the path of life. और भजन संहिता 16:11, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। This is the path of life before each one of us. ये वो जीवन का रास्ता है हम में से प्रत्येक के सामने। To live in His presence, that is fullness of joy. उसके उपस्थिति में, हिंदी में लिखा है तेरे निकट, इंग्लिश में लिखा है तेरे उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। So, what is the path of life? Path of life is to live in His presence 24/7, which will give me fullness of joy. और जीवन का रास्ता क्या है? जीवन का रास्ता है उसके उपस्थिति में दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन जीना, जिसके द्वारा मुझे आनंद की भरपूरी मिलेगी। That means I want to remove, if at all I fall anywhere, I want to remove that as quick as possible and get restored back to God as quick as possible. इसका मतलब अगर मैं कहीं गिर भी जाता हूं तो जितना जल्दी संभव है मैं उसे निकालना चाहता हूं, जितना जल्दी संभव है मैं प्रभु के साथ पुनः स्थापित होना चाहता हूं। Then is written, in thy right hand there are pleasures forevermore. फिर लिखा है तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। Who is at the right hand of God? परमेश्वर के दाहिने हाथ में कौन है? It is Jesus Christ. यीशु मसीह है। So it's written, in Jesus Christ are pleasures forevermore. और इसलिए ये वचन ये कह रहा है कि यीशु मसीह में सुख सर्वदा बना रहता है। You know what is the reason why we try to seek pleasure in mobile phone, in maybe pornography, or maybe in food, maybe in trips here and there, picnics? So many places we can seek pleasure. Nothing will give us real joy. क्या कारण है कि हम सुख विलास को शायद हमारे मोबाइल फोन में या अश्लील या पोर्नोग्राफी को, अश्लील चलचित्रों को देखने में या कहीं घूमने जाने में या भोजन में या किसी पिकनिक में जाने में, क्यों हम इन चीजों में सुख विलास को ढूंढते हैं जबकि इनमें से कोई भी चीज हमें सुख विलास नहीं देती, हमें संतुष्ट नहीं करती? Whoever drinks of this water will thirst again. जैसे यीशु ने कहा, जो भी इस जल से पिएगा वो फिर एक बार प्यासा होगा। But whoever drinks of the water which I give will never thirst. पर जो भी उस जल को पिएगा, जो जल मैं उसे देता हूं, वो फिर कभी प्यासा न होगा। It will become in him a well of water, springing to eternal life. वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। So let's really seek for such a life. और आइए हम वास्तविकता में इस जीवन की खोज करें। Thank you, brother, for wonderful translation. Yes, thank you.